but there are 4 clauses under which this power can be exercised, right? We have done all the 4 clauses with examples, right? Is there any doubt with regard to section 8? And if with regard to section 8 koi doubt ho, otherwise we will proceed with section 7. No doubt with regard to section 8? No, ma'am. Okay, let's proceed with section 7 then. Please refer section 7. It is similar. Just a second. Nisha ma'am, please host to bana do. I can't share my screen. Is Nisha ma'am here? Just a second, students. Sorry, it is not possible for me to share the document. Akhil, please read section 7. Section 7. Recovery of specific movable property. A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by CPC. Okay, similar to section 5, under section 7, it is provided that a person has a right or has an option to file case under section 8, and if he can't file under section 8 because under section 8 we can't file a case against the owner, or if the case does not fall under the 4 categories mentioned under section 8, then it does not mean he has no other remedy to recover the property. In that case, a person can file a case under section 7. Under section 7 जो भी CPC में रेमेडीज अवेलेबल है वो सारी ओपन है. सेक्शन 8 में रेमेडी प्रोवाइड करने से सेक्शन 7 का जो हम कहेंगे राइट है वो खत्म नहीं हुआ है. अब एक मिनट, प्लीज अंडरलाइन अंडर सेक्शन 7 एंटाइटल्ड, पर्सन एंटाइटल्ड, प्लीज अंडरलाइन अंडर सेक्शन 7 पर्सन एंटाइटल्ड in a manner provided by CPC. In a manner provided by CPC. Whenever you are filing a case under CPC, in that case, a person get 2 kind of remedies, either to recover movable property or he can get damages as well. Whereas under section, a person only get किस टाइप की डिग्री मिलती है अंडर सेक्शन 8? हाँ जी, अंडर सेक्शन 8 किस टाइप की डिग्री मिलती है? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, then tell me. हमने कहा under section 7, if you are filing a case in as per the remedies given under CPC, in that case, a person will get a decree either of a recovery of movable property or of damages, right? These 2 remedies, that is decree for recovery of movable property or of damages or compensation, are alternative remedies. दोनों में से कोई एक मिल जाएगी, keeping in view the evidence and the facts and circumstances of the case. But under section 8 हमें किस टाइप की डिक्री मिलती है? Movable property. Yes, only with regard to recovery of property. There is no option of damages or compensation, right? So this is the main difference. Second, whenever we are filing case under as per section 7, it means by following a procedure of CPC. In that case,
a person who is entitled to possession can file a case against anyone. There is no restriction with regard to ownership or with regard to a third person. We can file case against anyone, no matter the other person is an owner, provided the plaintiff should be entitled to the possession. Either that entitlement means he has a right to claim possession. Now, how he can claim right, what kind of right, please refer explanation में दिया हुआ, please refer that part. I don't have Explanation 1. explanation 2, please refer explanation 2. A special or temporary right to the present possession of movable property insufficient to support a suit under this section. Okay, a person, how can we say that a person is entitled? He must have either a special right or a temporary right. Now, what is special right or a temporary right? Special right means he must be an owner or a right created by owner through a contract. Temporary right is any right which is recognized by law, though you are not entitled to it. Neither it is created by a contract or you are not owner of that property. अभी कौन से हम कहेंगे कौन से राइट्स हैं, लाइक फाइंडर ऑफ अ गुड, ना तो उसको पोजेशन दी है, राइट, ना हमने कोई राइट क्रिएट किया है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना उसके पास ऑनरशिप है. जिसको भी गुड्स मिले हैं, राह पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, उसको कोई पर्स मिल गया, he is entitled to the possession, right? अगर हम कहें कि फाइंडर ऑफ अ गुड या फिर इसमें रिकवर पोजेशन, जब हम बात कर रहे हैं इसमें कवर हो जाते हैं बेली, प्लेजी, a person who has a right to lien. These are the people who are entitled to possession, though they don't have ownership right. Now, all these people can file a case even against the owner under Section 7. Whereas under Section 8, they are not entitled to file case under Section 8 because ownership is a restriction under Section 8. But under Section 7, there is no such kind of restriction. Thus, a person can file a case against the owner also. अब बात करते हैं right of lien में. Why a person will file a case against owner? हाँ जी, आप बताओ lien क्या होता है, right of lien? मैम, जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास होता है, अगर कंपनसेशन नहीं आती तो हम उस प्रोडक्ट को होल्ड कर लेते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम. Okay, lien is when the property ownership is transferred. Ownership हमने दे दिया किसी और को, but that person has failed to pay the full amount. उसने जो अमाउंट जितने में, जैसे 10,000 में हमने प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी तो उसको ट्रांसफर हो गई है, बट क्या हुआ, अभी तक 10,000 नहीं दिए, एंड पोजेशन इज स्टिल विद मी. ऑनरशिप किसी और में है लेकिन पोजेशन मेरे पास है, देन आई कैन विदहोल्ड द डिलीवरी. मैं कह दूंगी नहीं, पहले मेरे पैसे पे करो तब आप प्रॉपर्टी लेके जा सकते हो. दैट इज राइट ऑफ लियन. इन दैट केस आई कैन फाइल, राइट. देन अगर कोई मेरी पोजेशन से कोई प्रॉपर्टी को लेके जाता है, आई नियरली हैव अ राइट ऑफ लियन. Even in that case, I can exercise a power under Section 7. Is that clear? In that case, अगर ऑनर ही बिना पैसे पे किए मेरे हाथ से जो प्रॉपर्टी है ले जाता है without paying me the amount, in that case, whether owner is entitled to possession or not. हाँ जी, क्या ऑनर के पास एंटाइटलमेंट है? हाँ जी, whether he has a right to property, right to take possession of property. When I am exercising right of lien, in that case, if the owner takes that property without my permission, right, whether I am entitled to possession and whether I can file a case against owner or not. हाँ जी, आंसर करो. Yes, ma'am, under Section 7. Yes, under Section 8. मौली क्या बोला आपने? मैम मैंने कहा है अंडर सेक्शन 8. I am entitled under Section 8 to file a case. यस मैम, क्योंकि मैं प्रोसेस कर सकती हूँ ना इस वक्त उस चीज को, क्योंकि ओनर मेरे ना तो उसने मेरे पैसे दिए हैं और वो मेरी परमिशन के बिना प्रॉपर्टी को ले गया है. ठीक है. Then against whom I am filing a case? मैम अगेंस्ट ओनर.
and whether section 8 allows us to file a case against honor? मैंने सेक्शन 8 की क्लास अटेंड नहीं मैं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजन, तो Okay, section 8 में ये restriction है that you can't file a case against honor, right? The reason being, क्यों हम section 7 में allow कर रहे हैं, क्यों section 8 में हम honor के against remedy allow नहीं कर रहे? Because section 8 का objective क्या है कि मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए जो तुम्हारी पोजेशन में है, राइट? हम उसके कंपनसेशन नहीं पे कर सकते, उसको सर्टेन नहीं कर सकते उसके डैमेजेस, दैट्स व्हाई मुझे दैट वेरी प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे व्हेन आई हैव अ राइट ऑफ लियन और ऑनर मेरी पोजेशन से प्रॉपर्टी ले गए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाइलिंग अ केस? व्हाट एक्चुअली आई वांट, मुझे क्या चाहिए रिटर्न में? क्या मुझे वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है? मनी। मैम उसे डैमेजेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए जो आपने मुझे पे नहीं किया। आई वांट दैट रेमेडीज मनी, चाहिए। यस आई वांट दैट मनी। मुझे वो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी, आप अपने पास रखो, बस मुझे मेरा पैसा दे दो। दैट्स व्हाई अंडर सेक्शन 8 द पर्सन इज नॉट अलाउड टू फाइल अ केस अगेंस्ट ऑनर, बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही किसमें है? मनी में। मॉनेटरी रिलीफ चाहिए उसे, डैमेजेस चाहिए। सो we allowed that person to file a case under section 7 and not section under 8. Is that clear? Now second, whether a finder of good is allowed to file a case under section 7 or not, and why he is not allowed to file a case under section 8. क्या फाइंडर ऑफ गुड के पास कोई राइट है रिकॉग्नाइज जहां पे वो ऑनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं? मुझे राह चलते एक पर्स मिला और अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, पहले आप मुझे पैसे दो फिर मैं दूंगी। क्या मेरे पास ऐसा कोई राइट है? क्या जब मैं ऑनर को भी फोर्स कर सकती हूँ टू पे मी मनी? हाँ जी, फाइंडर के पास राइट नहीं है, बिकॉज उसकी नहीं। ड्यूटी बनती है कि वो ट्रेस करके ओनर को वो प्रोडक्ट वापस करे। ओके, कहीं पे भी कोई ऐसा राइट रिकॉग्नाइज नहीं व्हिच ही कैन एनफोर्स अगेंस्ट द ऑनर? मैम इंडियन मैम अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्ट कुछ में मेंशन्ड है। मैम रॉन्ग कहाँ? डूअर के अगेंस्ट कर सकता है वो, अगर रॉन्ग, जैसे ओनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन। आप कह रहे हो उसके अगेंस्ट कर सकते हैं बट नॉट अगेंस्ट द ऑनर। आई थिंक दीपिंदर यू वर सेइंग कि वो कर सकते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैन यू प्लीज टेल मी यस मैम। अंडर मैम व्हिच अगर उसको प्रॉपर्टी को रखने का खर्चा 2/3 से ज्यादा हो जाए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो फिर वो क्लेम कर सकता है। वो उस टाइम पे बेच सकता है बच्चे, उसके पास राइट टू सेल है। जो राइट टू रिकवर है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 168। अगर किसी के पास प्लीज बेयरेक्ट है वन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो प्लीज ओपन कर सकते हैं। किसी के पास है? एनी वन ऑफ यू? यस मैम। अखिल, you have please read section 168. Section 168. Right of finder of good may sue for specific reward offered. The finder of good has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the good and to find out the owner. But he may retain the good against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain to goods until he receive it. Is that clear? अगर आपने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर कर रखा है या कोई एक्सपेंसिव लगाए हैं फाइंडर ने, राइट, टू फाइंड द ऑनर ऑफ द गुड, in that case he can retain those goods and he can claim money from the owner, right? Now if the owner takes that property wrongfully from the hands of finder, in that case he can file a case against the owner that I am entitled to possession. Entitled to possession कब तक? जब तक वो मेरे पैसे नहीं दे देता। He has taken that property from my hand wrongfully without paying that money. जब तक वो पैसे नहीं दे देता, he is not entitled to possession of property. Is that clear? यस मैम। मैम वैसे प्लेज के केस में भी फिर तभी इसमें आ सकता है, 8 सेक्शन 8 में नहीं आएगा उसका, इसमें आएगा रिकवरी ऑफ कंपनसेशन में, है ना? यस, जो आप प्लेज की बात कर रहे हो वहां पे भी अगर मैंने प्लेज किया है, मैंने प्रॉपर्टी दी है,
अगर कोई प्रॉपर्टी वहां से ले जाता है, आपकी पोजीशन से ले जाता है, who has no right, then you can file a case under section 7. Section 7 में कोई as such restriction imposed नहीं की हुई. Is that clear? Neither with regard to relationship, neither जो हमने सेक्शन 8 में 4 क्लॉजेस किए हैं, that compensation is unascertain, damages are unascertainable, compensation is not adequate relief, यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Is that clear? Yes, Now, ma'am. अगर हमने बात की थी कि कार रिपेयर के लिए दिए, राइट, अब वो कार जो सर्विस सेंटर है उनकी पोजीशन से कोई ले जाता है, राइट, इन दैट केस whether the owner can file a case against that third person. हाँ जी, सर्विस Yes, सेंटर की ma'am. पोजीशन से Ma'am, कोई, किसी के हाँ, भी अगेंस्ट कर सकता है सेक्शन 7 में तो. ओके, सेक्शन 7 में यू मस्ट हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी, एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, नॉट राइट ओवर अ प्रॉपर्टी. ऑनरशिप राइट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पोजेशन की बात करें. इस केस में जो ऑनर है उसके पास तो ऑनरशिप राइट है, ऑनरशिप जिसके पास ऑनरशिप राइट है उसके पास पोजेशन पे. यहाँ पे ही हैज गिवन दैट प्रॉपर्टी टू द सर्विस सेंटर, बट उसकी क्या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो है. सो द ऑनर इज ऑल्सो अलाउड टू फाइल अ केस. एंड जो सर्विस सेंटर है वो क्या है इस केस में, वो कौन सी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है? सर्विस सेंटर के पास क्या राइट है पोजेशन का यहाँ पे? मैम एजेंट की कैपेसिटी में या बेली की कैपेसिटी? बेली की, because we have given the property for a particular purpose, so we will consider as her रिपेयर जो सर्विस सेंटर उसको हम बेली की कंसीडर करेंगे या एजेंट की डेफिनेशन में कंसीडर करेंगे. इन दैट केस इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. देयरफॉर अगर कोई सर्विस सेंटर की पोजेशन से प्रॉपर्टी लेके जाता है, देन वी कैन फाइल अ केस अंडर सेक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 सीपीसी के अंडर हम केस फाइल कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ऑनर भी कर सकते हैं और बेली भी कर सकते हैं. क्लियर है? मैम जो भी सर्विस सेंटर की एग्जांपल दी इसमें हम मैम जो आपने एक्सप्लेनेशन टू स्पेशल राइट और टेम्परेरी राइट एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दोगे एज एग्जांपल? स्पेशल और टेम्परेरी राइट, अगर मैंने आपको बाय कॉन्ट्रैक्ट हमने कुछ कि आई एम गिविंग यू अ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, राइट, ये किन केसेस में अप्लाई होता है? जैसे हमने कोई बेड खरीदा, राइट, वहां पे हम कहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर बेड है, आपको पसंद आ गया, फर्नीचर शॉप में जाते हो, आप कहते हैं मुझे ये पर्टिकुलर बेड पसंद आ गया, ये लो पेमेंट, आप इसको दोबारा पॉलिश करके मुझे दे देना, राइट, थोड़ा न्यू करके मुझे दे देना. नाउ इन दैट केस वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट in which the property is transferred to the person, but the seller is retaining the possession of a property for a particular purpose, right? So he has a special right because it is created by a contract, right? But अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई हमने टाइटल नहीं ट्रांसफर किया, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, जैसे बेली के केस में ओरल होता है. बट अब जो फाइंडर ऑफ अ गुड है उसके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको तो हमने कोई टाइटल नहीं क्रिएट किया रखा, बट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड हिज राइट टू पोजेशन. वो आ जाता है कि आपके पास जरूरी नहीं कोई टाइटल हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ऑनरशिप हो, बट अगर आप चाहे कुछ टाइम के लिए, अब जो फाइंडर है वो कब तक प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते. यू हैव अ टेम्परेरी राइट ओवर अ पोजेशन, इवन देन यू आर एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 7 टू फाइल अ केस. इज दैट क्लियर? मैम एक एग्जांपल बताता हूँ मैम, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स के रिकॉर्डिंग है. जैसे अगर किसी साफ सफाई के लिए किसी को बुलाया, जैसे किसी पूल की साफ सफाई के लिए बुलाया किसी को, ठीक है. तो उससे अगर साफ करते हुए कोई रिंग मिल गई, तो वो भी क्या पोजेशन टाइटल के अंडर हेल्ड होगा? वो जो फाइंडर ऑफ गुड की पोजेशन में आएगा वो. अब जो वो साफ सफाई वाला है उसकी पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है, दैट सफाई वाला विल बी कंसीडर्ड एज फाइंडर ऑफ गुड, राइट. अगर वो तभी उस पे क्लेम कर सकता है अगर कोई रिवॉर्ड हो या उसने एफर्ट की हो. अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन फाइंडर ऑफ गुड कांट फाइल अ केस. देन तो वो किसकी पोजीशन में होगा? ऑनर जो है या जो उसके घर में मिले उसको होगा. फाइंडर ऑफ गुड का जो हम पोजीशन का राइट है वो लिमिटेड राइट है. जस्ट बिकॉज आपको चीज मिली आप ऑनर नहीं बन जाते हो, राइट. आपका राइट नहीं है. आपका जो फाइंडर ऑफ गुड का राइट है हमने लॉ में रिकॉग्नाइज किया, बट दैट इज अ लिमिटेड राइट, राइट. ये बात हम करें अगेंस्ट द ऑनर.
ऑनर के अगेंस्ट वो सिर्फ लिमिटेड केसेस में ही अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट मान लो सफाई वाले के हाथ में वो अंगूठी लग गई है, ऑनर को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उनके घर में एक बावर्ची रहता है जिससे हम कहते हैं कोई खाना बनाने वाला है, उसने वो प्रॉपर्टी जो काम वाला था उसके हाथ से ले लिया, ये कह के कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, राइट, तू थोड़ी मालिकिन है, मैं ये तो मेरे मालिक के घर में मिली है, अब मैं रखूंगा इस पे क्योंकि तू थोड़ी ऑनर है उसकी। यहाँ पे जो फाइंडर ऑफ गुड है, he or she can file a case against that servant, जो खाना बनाने वाला है, बटलर है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, बिकॉज दोनों में से who has a better title to possession? Finder of good. Is that clear? But if we talk about finder of good and honor, in that case finder of good has a limited right, only in few cases he can file against honor. Is that clear? Yes, मैम ma'am. Okay, हाँ जी, पूछो क्वेश्चन। मैम अगर कोई ऐसी चीज है जो मतलब डैमेज होने का मतलब वो सम टाइम में डैमेज हो जाएगी और फाइंडर ऑफ गुड्स उसको सेल कर देता है, तो फिर को उसको डैमेजेस वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे ना? किसको डैमेजेस नहीं पे करने पड़ेंगे? ओनर को मैम, अगर Honor, वो गुड्स फाइंडर ऑफ गुड्स पर्सन है, उसने कोई गुड्स है वो जिसका पता है कि सम टाइम में खराब हो जाएगी या Okay. ये डैमेज हो जाएगी, तो फिर वो सेल कर सकता है ना? okay, इस केस में आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बॉक्स ऑफ मैंगोस, राइट, आई फाइंड अ बॉक्स ऑफ मैंगोस, आई डोंट नो ये किससे बिलोंग करता है, बट मुझे इतना पता है, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ऑनर ऑफ दोज मैंगोस, मुझे नहीं पता किसके हैं, मैंने कोशिश भी की, नहीं मिला, बट इन कमिंग टाइम मुझे पता है कि ये तो 2-4 दिन के हैं, उसके बाद ये खराब हो जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे, आई हैव अ राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ टू सेल ऑफ दोज मैंगोस। नाउ अब वो मेरे पास पैसा जो आ गया, यहाँ पे केस हो सकता है विद रिगार्ड टू रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज देयर इज नो गुड अवेलेबल। फर्स्टली यहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस नहीं आएगा, बिकॉज पोजेशन के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल होना जरूरी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है नहीं। अब बात आती है कि जो मेरे पास पैसा है, whether owner can recover that money? Yes, he can recover that money provided he is able to prove कि ये जो मेरे पास गुड्स थे वो उसके थे और उसको सेल ऑफ करके मेरे पास ये पैसा आया, which is difficult, but if he can prove then yes he can claim back that money. Now आप कह रहे हो कि जो damages या compensation पे करनी नहीं होती है फाइंडर को अंडर सेक्शन 168, उसमें क्या होगा, because already finder has a money, बल्कि उसके पास ज्यादा पैसे है टू विच ही इज एंटाइटल्ड, मुझे कंपनसेशन के लिए या जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो 500 या 1000 मिलने चाहिए, और मैंगोज को बॉक्स सेल ऑफ करके मुझे मिल रहे हैं 10,000। इन दैट केस फाइंडर को वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो पे ऑफ करनी पड़ेगी टू दी ऑनर। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, मैम, हाँ जी, पूछो। मैम जैसे सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि एडवर्स पोजेशन की एक कंसेप्ट था जो कि सफिशिएंट टाइम पीरियड के बाद वो टाइटल उसका हो जाता है, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी में भी जो फाइंडर ऑफ गुड्स कह लें या कोई रीजन से वो ओनरशिप ले सकता है और सफिशिएंट टाइम पीरियड के बाद? मुझे एक बार ना अखिल इसके लिए सेक्शन 27 रेफर करना पड़ेगा, वेदर द वर्ड इज कि वहां पे कोई प्रॉपर्टी को आगे डिफाइंड कर रखा है या नहीं, इफ because I don't remember exactly section 27, but if the word is merely property and not immovable property, then yes the right can be मतलब after expiry of limitation period के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी ओन हो जाएगी, बट मुझे उसके लिए सेक्शन 27 एक बार रेफर करना पड़ेगा। I will answer to you tomorrow, ठीक है, with regard to it. हाँ जी, any other question? Please read. हाँ जी, पूछो पहले, आप पूछो। मैम इन केस वो प्रॉपर्टी उसे भी नहीं पता कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट सडनली एनी एक्ट ऑफ गॉड वो मतलब जो भी गुड्स है या कोई प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर भी फाइंडर ऑफ गुड्स को पे करना पड़ेगा? नो नो, वहां पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बल्कि वो उसने तो प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को। अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो खराब हो जाए तो देन फाइंडर कांट बी मेड लायबल फॉर इट। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, एनीवन? अखिल प्लीज रीड एक्सप्लेनेशन 1 और सेक्शन 7।
A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person from whom his trustee is entitled. ओके, सेक्शन 7 ने ट्रस्टी के राइट को भी रिकॉग्नाइज किया है दैट इवन अ ट्रस्टी कैन फाइल अ केस फॉर द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी टू विच द बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड. बेनिफिशियरी पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, उसका राइट बनता है, बट बेनिफिशियरी के बिहाफ पे इवन अ ट्रस्टी कैन फाइल अ केस अंडर सेक्शन 7. हमने ये स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया है. आई होप आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में. Yes, ma'am. Trust किया था पूरा. राइट, ट्रस्ट का पूरा एक्सप्लेन किया था बिकॉज ट्रस्टी इज द वन हु इज एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बेनिफिशियरी. तो जो प्रॉपर्टी ट्रस्टी के होल्ड में है, राइट, वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. तो अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर दी है ट्रस्टी को या फिर बेनिफिशियरी को, इन दैट केस who is entitled to the possession, who is enjoying the benefit of a property, that is beneficiary. ट्रस्टी के सिर्फ होल्ड में है लेकिन राइट किसका है? बेनिफिशियरी का है. बट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए हु इज एक्टिंग? ट्रस्टी कैन एक्ट. देयरफॉर हमने कहा है कि लेटर ऑन कोई ऐसी लूपहोल ना अराइज हो जाए, बिकॉज एंटाइटल्ड तो कौन है? बेनिफिशियरी है. इसीलिए हमने एक्सप्रेसली एक्सप्लेनेशन 1 में ऐड किया है दैट इवन अ ट्रस्टी कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी. इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है. अखिल एक बार सेक्शन 2D रीड करना, 2D एंड 2C. Section 2D. Trustee. Trustee include every person holding property in trust. नाउ रीड सेक्शन 2C. Trust. Trust has the same meaning as in Section 3 of Indian Trust Act 1882 and including an obligation in the nature of trust within the chapter of 9 of the Act. ओके, आई डाउट मैंने आपको ये ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ एक्ट एक्सप्लेन किया था. वेदर वी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल? मैम प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार दोबारा से. ओके, सेक्शन जो हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रस्ट कवर सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट कि जो ट्रस्ट है वो जो ट्रस्ट एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें ट्रस्ट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी होंगे. ट्रस्ट ऑथर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. ऑथर अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करेगा टू द ट्रस्टी, उसको ट्रांसफर करेगा, बट वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता, चाहे उसको वेस्ट किया, राइट. वो प्रॉपर्टी जो है वो किसके बेनिफिट के लिए यूज करेगा? फॉर द बेनिफिशियरी. और वहां पे जो भी प्रोविजन है कि लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ट्रस्टी, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ ट्रस्टी एंड सिमिलरली बेनिफिशियरी, all is covered under section all is are covered under Indian Trust Act 1882. ये तो है with regard to section 3. जो second part and obligation arising out of trust, right, in the nature of trust. obligation के लिए please refer section 2A कि obligation किसे कहा जाता है. अखिल रीड करो section 2A. Obligation includes every duty enforceable by law. It means अगर कोई ड्यूटी लॉ ने इम्पोज की उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन. लॉ मीन्स एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स चाहे वो टॉर्ट में अराइज हो रही है या इट अराइजेस बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है, कोर्ट लॉ क्या करेगा? उसे एनफोर्स करवा सकते हैं. देयरफॉर द एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स आइदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी और अ टॉर्ट्स ड्यूटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या रिलीजियस ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी या सोशल ड्यूटी, क्या इसमें ये कवर होती हैं? द आंसर इज नो. इसमें कभी भी मॉरल ड्यूटी हो, सोशल ड्यूटी हो या फिर रिलीजियस ड्यूटी, हमें भगवान को पूजना चाहिए, हमें रोज धूप वगैरह जलानी चाहिए, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी हमारी बीइंग अ फॉलोअर, राइट, बट इट्स अ रिलीजियस ड्यूटी. हम इसको लॉ की आईज में एनफोर्स नहीं करवा सकते कि हाँ जी आपकी ड्यूटी है धूप बत्ती करना, आप रोज क्यों नहीं करते. It is not enforceable by law, therefore it can't be considered as obligation. When we are talk about obligation in the nature of trust, यहाँ पे वो obligation आ जाती है जहाँ पे trust जो है वो ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं हुआ या फिर वो अप्लाई नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल
ट्रस्टी को प्रॉपर्टी दी है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, ऑथर की भी डेथ हो गई है और बेनिफिशियरी की भी डेथ हो गई है, और हमने कहा है कि जो ट्रस्टी है वो प्रॉपर्टी खुद इंजॉय नहीं कर सकता, वो हमेशा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी यूज करेगा। अब जो ट्रस्ट क्रिएट किया गया था एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वो तो अप्लाई नहीं हो सकता, वो तो फोरफिट हो चुका है, खत्म हो चुका है, राइट। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की फॉर्म में उसको होल्ड करेगा जो ट्रस्टी है, और उसको कैसे अप्लाई करेगा, फॉर द रिवर्शनर्स, जो ऑथर के लीगल हियर्स हैं उनके लिए वो उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, और जब तक वो ट्रांसफर नहीं करता वो एज अ ट्रस्टी जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको होल्ड करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। मैम वो बेनिफिशियरी के लीगल हियर्स को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बेनिफिशरीज के बेनिफिट के लिए थी, उनको ट्रांसफर नहीं की प्रॉपर्टी, उनके यूज के लिए थे कि आप इसका फायदा उठा सकते हो, बट प्रॉपर्टी हमने बेनिफिशरीज को ट्रांसफर नहीं की। अगर ट्रांसफर की होती, अगर उनका वेस्टेड राइट क्रिएट किया होता, उस केस में वो बेनिफिशरीज को बेनिफिशरीज के हियर्स को ट्रांसफर होती। अभी मैंने ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी जो है, फॉर एग्जाम्पल आई एम द ऑथर, आई वॉन्ट टू यूज माई प्रॉपर्टी फॉर यू गाइस, ठीक है, ये आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं चाहती हूँ आपके लिए यूज हो, बट मैं आपको ये प्रॉपर्टी ना देके किसी थर्ड पर्सन को कह देती हूँ कि ये जितना भी पैसा होगा इनके एजुकेशन में लगा देना। वो प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा, इनके फायदे के लिए लगा देना, इनकी एजुकेशन के लिए लगाना। ये नहीं है कि जैसे मर्जी चाहे ये लोग यूज करें, या फिर मैंने ये नहीं कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी वो आप लोगों की हो गई है, नो। अगर मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करती, आपका राइट उसमें क्रिएट करती, वेस्टेड राइट जिसे कहते हैं, तब वो ट्रांसफरेबल होती, बट मैंने आपके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, देयरफॉर इट कांट बी फर्दर ट्रांसफर टू द लीगल हियर्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, now write down the difference between section 7 and 8. Please write down the difference. Section 7 is independent of the nature of property and relationship between the parties. Section 7 is independent of the nature of property and relationship between the parties. Whereas Section 8 represents a special rule and dependent on the nature of property or relationship of parties as specified in 4 clauses. हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। An action under section 7 can be brought even against the owner of property, provided plaintiff has a special or temporary right to the possession. Plaintiff has Ma'am, special or property, owner of property. if the provided the plaintiff has special or temporary right to the possession of the property. Whereas under section 8, an action can't be brought against the owner. A decree under section 7 is governed by Order 20 Rule 10. Order 20 Rule 10 of CPC
वो कहते हैं कि जब डिक्री ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें कोर्ट क्या कर सकते हैं, इन ऑल्टरनेटिव डैमेजेस पे कर सकती है, राइट। इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 20 रूल 10 where damages are alternate remedy to the possession of property. Damages are the alternate remedy to the possession of the property. Whereas under section 8, specific property can be recovered. Specific property can be recovered. Last, section 7 is based on common law rule, whereas section 8 is based on equitable rule. Bracket में कर लो equitable rule. हाँ जी, clear है with regard to section 7 and 8? Any doubt with regard to section 5, 6, 7, 8? Today we have completed part 2, chapter 1. Any doubt with regard to it? हाँ जी, बताइए कोई doubt, otherwise we will start further. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Before starting with chapter 2 of part 2, that is specific performance of contract, we'll talk about Specific Relief Amendment Act 2018, because it brought a great change in chapter 2. Therefore, we'll not start chapter 2 today. We'll talk about the amendment, what kind of amendment it has brought, what is the reason behind the same, and whether we have to give retrospective or prospective effect to the same. Now, Specific Relief Amendment Act 2018 was enacted on 19th of September 2018. 19th of September 2018, and it came into force on 1st of October 2018. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेट याद रखनी है। इनैक्ट हुआ है 19 सितंबर को और एनफोर्स हुआ है 1st of October 2018 को। इज दैट क्लियर? I hope you know the difference between date of enactment and date of enforcement. Is there any doubt with regard to it? No, ma'am. Okay. Now, what changes it has brought? What changes it has brought? And जो इसमें changes आए हैं, we'll discuss along with the provisions. Today we'll talk only about the broad changes जो chapter 2 में आए हैं, हम उन्हीं को discuss करेंगे। हम minutely हर change को discuss नहीं करेंगे, right? वो हम रेफर करेंगे जब भी हम प्रोविजन करेंगे, उसके साथ हम चेक करेंगे कि क्या 2018 की अमेंडमेंट के साथ क्या डिफरेंस आया। फर्स्ट चेंज, जो मेजर चेंज 2018 के अमेंडमेंट से आया है, वो आया है विद रिगार्ड टू सेक्शन 10। बिफोर 2018 जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, इट वाज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की डिस्क्रिशन थी। देयर वर 2 ग्राउंड्स व्हिच द कोर्ट must keep in mind while exercising that discretion. Those grounds were mentioned under section 10 only, right? कोर्ट की डिस्क्रिशन थी, वो ग्राउंड्स को डिटरमिन करने के बाद भी कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ देनी है या नहीं देनी, राइट? बट आफ्टर 2018 amendment, the discretion has been abolished. Now it is mandatory to order specific performance of contract. क्या अब कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को? यस, कर सकती है। पहले हमने बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन दे रखी थी। अब कोर्ट का जो जनरल रूल है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड सेक्शन 14, सेक्शन 16 और सेक्शन 20 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रखी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई केस उन रिस्ट्रिक्शंस में फॉल करता है, in that case court has a discretion to refuse
द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर उनमें फॉल नहीं करता, in that case the rule is specific performance of contract, court order करेगी. Now it is mandatory to enforce specific performance of contract provided जो restrictions subsequent sections में दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए. Is that clear? Second, injunction. इंजंक्शन होती है स्टे ऑर्डर देना, कि आप इंजंक्ट कर देते हो कि आप कोई भी एक्ट परफॉर्म करने वाले हो या नहीं करना, उस केस में आप कोर्ट से क्या ले लेते हो, इंजंक्शन ले लेते हो. प्रिवेंटिव इंजंक्शन होती है, मैंडेटरी इंजंक्शन होती है. We will do the type of injunction when we will do the last chapter, but injunction होती है स्टे ऑर्डर लेना, कि कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले लेते हो कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म नहीं करोगे. जो इंजंक्शन हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, हाईवे वगैरह जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, वहां पे पार्टीज फ्रीक्वेंटली इंजंक्शंस लेती रहती थी, राइट. उस केस में अब कोर्ट जो 2018 में अमेंडमेंट आई है वो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट. इज दैट क्लियर? Next, the biggest change brought by the law is substituted performance. Substituted performance क्या है कि अगर आपको कोई एक्ट परफॉर्म करवाना था द पार्टी से, फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर दिया कि आप मेरे लिए एक घर के लिए एक बेड बनाओगे. अब पहले क्या होता था, मुझे उसी पार्टी को कहना पड़ता था कि आप मेरे लिए बेड बनवाओ. उधर मैंने घर के लिए पार्टी रखी हुई है, सबको इनवाइट कर रखा है और इधर बेड नहीं बन रहा. अब उस केस में क्या, पार्टी हैरास होती रहती थी. उस चीज को ओवरकम करने के लिए लॉ ने कहा कि अगर पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, देन द पार्टी हु इज आस्किंग फॉर द परफॉर्मेंस, इट मींस द प्लेंटिफ हैज अ राइट टू गेट द सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मींस अगर मिस्टर ए बेड बना के नहीं दे रहे हैं, उस केस में हैव अ राइट कि मैं मिस्टर बी को कह दूं कि आप ये बेड बना के दे दो, और जितना भी मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो भी मेरा पैसा लग रहा है, आई कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम मिस्टर ए, जिनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मुझे सब्स्टिट्यूट करवानी पड़ी परफॉर्मेंस. उस केस में आई कैन रिकवर फ्रॉम मिस्टर ए. उससे क्या हो जाएगा, मेरा काम भी टाइमली हो जाएगा और मुझे फाइनेंशियल हार्डशिप भी फेस नहीं करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द चेंज ब्रॉट बाय द 2018 अमेंडमेंट इज विद रिगार्ड टू हाईवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स को क्रिएट किया गया. प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट वाज मेड एंड अलोंग विद दैट टाइमली डिस्पोजल करने के लिए उन्होंने फिक्स किया है पीरियड कि जो भी इश्यूज होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, जो सूट्स वगैरह होंगे, वो स्पेशल कोर्ट में जब डील किए जाएंगे, दोज इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन 12 months. 12 months में डिस्पोजल होना चाहिए मैटर का. और अगर कुछ ज्यादा ही टेक्निकल मैटर है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू 6 more months, मींस टोटल 18 months. इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, आपको टाइम बाउंड मैनर में ये करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? There are certain other kind of provisions also जहाँ पे कोर्ट जो है एक्सपर्ट की हेल्प ले सकती है, एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकती है, राइट, एंड ट्रीट देयर रिपोर्ट्स एज एविडेंस ऑल्सो. ये चेंजेस जो हैं, ब्रॉड चेंजेस, सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने ऐड किए हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. इज दैट क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? No, ma'am. Okay, now the question ki why these changes are brought, what is the need behind it, or what is the objective of 2018 amendment over a period, because ये जो law है वो 1963 का बना है. उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इट हैज चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट. उसके बाद से हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ चुका है. अब ये हमारा लॉ क्या कह रहा था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्रिशनरी. इट मींस चाहे प्लेंटिफ का राइट था, प्लेंटिफ हर वो एक्ट कर रहा है जिससे वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, वो पे भी करने के लिए तैयार है, सब है, लेकिन उसको फेस करना पड़ता था बिकॉज ऑफ द अदर पार्टी. अदर पार्टी क्या करती है, पहले तो केस ही इतने साल चलता रहता है, केस चलेगा, केस के एंड में भी हमारे पास हमें नहीं पता कि कोई वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूट करवाएगी कोर्ट या नहीं.
कोर्ट क्या कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है, बिकॉज कोर्ट के पास क्या एम्पल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है। उस केस में हमारे यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो बिजनेस है, उस पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है लॉ का, राइट, बिकॉज वी आर रेगुलेटेड बाय लॉ। हम देखते हैं कि अगर हम किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे हैं, किसी और कंट्री में बिजनेस करने लगे हैं, हम देखते हैं कि वहां के लॉज जो है बिजनेस के लिए कितने कंड्यूसिव हैं, कितने फेवरेबल हैं। अगर वहां के लॉ बिजनेस के लिए या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए फेवरेबल नहीं है, हम उस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, कभी भी उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी वहां का बिजनेस जो है ग्रो नहीं करेगा, राइट, बिकॉज लॉज जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, फेवरेबल नहीं है। दैट्स वाई हमने जो बिजनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम जिसको प्रमोट करते हैं, हमने जब भी जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, लाइसेंसेस लेने का प्रोसेस है, उसको बहुत लीनियंट कर दिया, सो दैट वी कैन प्रमोट एफडीआई on a similar basis, on the same base, to do ease of doing business or to inculcate that thing. हमने क्या किया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चेंजेस लेके आए हैं, सो दैट जो बाहर से पार्टीज आ रही हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं, उन एंटिटीज को ये सेटिस्फेक्शन रहे, ये एक भरोसा रहे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहली बात उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। सेकेंडली, अगर सामने वाली परफॉर्म नहीं कर रही है, सामने वाली पार्टी, दे हैव अ राइट टू गेट इट सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर पर्सन एंड लॉ स्टैंड्स अलोंग विद देम। लॉ उनके अगेंस्ट नहीं है, लॉ उनके साथ खड़ा है। लॉ कहता है आप किसी और से काम करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनसे, हम कंपनसेशन ऑर्डर कर देंगे, राइट। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव हमने ये स्टेप लिया, हमने ये चेंजेस लेके आए। अनदर, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इतने चेंजेस लेके आए, वो इसलिए कि जो हमारे infrastructure is very important for the country, right? But over a period of time we have experienced that जो हमारे projects हैं वो delay होते रहते हैं due to these injunctions, right? So to curb that thing, we have inculcated provisions specifically with regard to infrastructure projects, so that जो इतनी delay होती है due to injunctions वो खत्म हो जाए और जो projects है वो timely execute हो पाए। Is that clear? With these objectives, we enacted Specific Relief Amendment Act 2018. यहाँ तक क्लियर है? क्या चेंजेस आए हैं, क्यों चेंज किया हमने? बेस क्लियर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? मैम, इसका कहने का मतलब है जो सेक्शन 10 में प्रिस्क्राइब है सेक्शन, जैसे 20, 16, 14, इसमें ऑप्शंस गिवन है, उस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी ही होगी? नो, जो आप सेक्शंस मेंशन कर रहे हो 14, 16, ये सेक्शन जो हैं एक्सेप्शंस हैं। अगर इनमें फॉल करता है, फिर कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। अगर उनमें फॉल नहीं करता, देन कोर्ट इज बाउंड टू गिव स्पेसिफिक और टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यस मैम। ये एक्सेप्शंस हैं। पहले क्या था, इन केसेस में तो रिफ्यूज कर ही सकती थी, अदरवाइज नॉर्मल केस में भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन थी, ठीक है। वहां पे पार्टी श्योर ही नहीं होती थी कभी कि हमारे फेवर में, चाहे सामने वाला कितना ही गलत हो। इवन देन जब तक डिसीजन नहीं आता, आई एम नॉट श्योर कि मेरे फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी, राइट। नाउ द लॉ इज क्लियर that court is bound to execute or to order specific performance of contract unless केस जो है सेक्शन 14 या 16 के सेक्शन की प्रोविजन में फॉल करता हो। क्लियर है? उस केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? बिकॉज नाउ वी हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन लॉ कैसे होता था? किस चीज का नेगेटिव इफेक्ट आप कह रहे हो बच्चे? मैम अमेंडमेंट से पहले स्पेसिफिक Negative- परफॉर्मेंस पे। ओके, अब आप देखो, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो और एक प्राइवेट में जाते हो। गवर्नमेंट में जाके क्या होते हैं, आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपको कहते हैं वहां से पर्ची लो, वहां से क्या, वहां पे पेमेंट करके आओ। यू हैव टू मूव डिफरेंट सेक्शंस, राइट। आपको अलग अलग जगह पे जाके डील करना पड़ता है। फिर आप जाके जिस पर्पस के लिए आप गए हो, जो ट्रीटमेंट करवाने गए हो, आप तब करवा पाते हो, राइट। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप एक जगह जाते हो, यू पे मनी, रिसेप्शन पे हो गया काम, आप सीधा डॉक्टर के रूम में, कोई आपको तंगी नहीं आती है। दैट्स व्हाई वी प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, वी फेवर प्राइवेट सेक्टर मोर, बिकॉज इट इज इजी।
सिमिलरली अगर कोई हमारे कंट्री में बिजनेस करने आया है, उसको क्या करना पड़ता था? पहले आप जी ये लाइसेंस लो, यहाँ पे रजिस्टर करवाओ, वहां से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाओ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। इससे क्या हुआ, जब आपको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, इतनी सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ते हैं, यू जनरली डोंट वांट टू गो एट दैट प्लेस। आप उस जगह पे कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहते। फिर आती है, ये तो होगी बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस की किस तरह की हर्डल्स फेस करनी पड़ते हैं। हमने इस चीज को ईज किया। हमने क्या किया, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए। अब यू कैन इजीली अप्लाई फॉर लाइसेंसेस, यू कैन इजीली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चेंज वी हैव ब्रॉट। सेकेंडली, ये फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, राइट, विद लोकल एंटिटीज और विद अदर पीपल। ये सिर्फ मैं एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए समझा रही बिकॉज ये आपको इजीली समझ आएगा। जरूरी ये मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एफडीआई के रिगार्डिंग ही हमने लॉ बनाया। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। जब आप बिजनेस करने लगते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको पता है दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर कि हमारे यहाँ पे ट्रायल्स जो है वो 10-10 साल, 15-15 साल चलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 या 15 साल चलने के बाद भी हमने कोर्ट को इतनी एम्पल पावर दे रखी है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर करेगी भी कि नहीं। व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ लॉ, व्हेन यू नो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में अगर पार्टी मुकर जाती है तो कोर्ट पता नहीं उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करेगी भी कि नहीं। इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस इनिशिएटिव। वो उस चीज को फिर सोचते कि छोड़ो, इस कंट्री में करना ही नहीं है, बिजनेस करना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो लॉ है वो बिजनेस के फेवर में नहीं। सो टू कर्ब दैट थिंग एंड टू प्रमोट बिजनेस, वी इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ चेंजेस। इससे क्या हुआ, अब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एटलीस्ट ही हैज अ सेटिस्फेक्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सेक्शन 14 और 16 में फॉल इन नहीं करेगा, सेक्शन 14 और 16 में कब फॉल करेगा, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसली देयर, राइट, एक्सप्रेसली मेंशन है। अगर वो चेक कर लेगा कि 14 और 16 में मेरा केस फॉल नहीं करता, अगर कभी सामने वाली पार्टी मुकर भी गई कि वो मेरा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से मुकर भी गई, देन मैं कोर्ट में जाके उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ। कोर्ट इज बाउंड टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अब ये लॉ आने से उसके पास एक एश्योरेंस है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और सामने वाली पार्टी ब्रीच करेगी भी तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? नाउ दिस लॉ गिव्स एश्योरेंस टू द पार्टीज। हाँ जी, ठीक है, यस मैम, क्लियर। क्लियर है? और कोई डाउट? Okay, now very important question which arises with regard to this amendment is whether this amendment is prospective in effect or retrospective. We have already talked about prospective effect and retrospective effect when we started this law. I am not going to discuss it again, but when we are talking about specific relief amendment act के रिगार्डिंग 2018 एक्ट के रिगार्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे, क्या उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया या नेगेटिव रेट्रोस्पेक्टिव। जब भी हमें ये डिस्कस करना है, हमें चेक करना है कि क्या लॉ को हमने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। उस केस में हमें देखना पड़ता है उस लॉ की प्रोविजंस को, क्या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड की हुई है या नहीं, क्या उसमें मेंशन है कि इट विल अप्लाई टू द फ्यूचर केसेस और इट विल अप्लाई टू द पेंडिंग केसेस। The answer is, if we talk about 2018 Amendment Act, there is no such provision. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। Now, to understand or to know what kind of effect we should give, we have to analyze the law. पहले हम बात करेंगे कि जो SRA है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसको अमेंडमेंट एक्ट को प्रोस्पेक्टिव देना है इफेक्ट या रेट्रोस्पेक्टिव देखना है, पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ SRA। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस टाइप का लॉ है? अभी तक जो केसेस हैं उन्होंने टाइम एंड अगेन यही हेल्ड किया है दैट द स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड रेमेडीज टू एग्जीक्यूट contracts, remedies to recover possession. So it provide remedies. Whenever any law is providing remedies, the same is considered as procedural law and not a substantive law. क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर?
तो अभी तक SRA 1963 की बात करें, हम अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहे, SRA 1963 की बात करें कि वो जो है रेमेडियल इन नेचर है, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज प्रोसीजरल लॉ. एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या कहता है अखिल? If the law is procedural, what kind of effect we give? What is the general rule? Retrospective, ma'am. Retrospective effect देते हैं. It means we apply the law even to the pending cases. When the issue with regard to SRA 1963 arises, then Calcutta High Court in a case in 1971 has held that we should give a retrospective effect to the SRA 1963 Act. It means हमने 1963 Act को procedural in law माना और secondly उसको क्या माना? Retrospective effect दिया. फिर अब क्या चेंज आया कि पहले जो इशू मेन जो आया कि पहले तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था वो तो डिस्क्रिशनरी पावर थी वहां पे कोर्ट के पास. कोर्ट क्या करती थी? कोर्ट की चॉइस थी, वो एनफोर्स करवाना चाहती है या नहीं. नाउ द रेमेडी इज मैंडेटरी इन नेचर. अब क्या कोर्ट एनफोर्स करवा सकती है? अब पार्टी हैज अ राइट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट, तो लोगों का कहना है कि अब जो स्पेसिफिक रिलीफ है, इट हैज गिवन अ राइट टू अ पार्टी टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. Therefore, the nature of the contract, the law has changed from procedural to, we can say, substantive law, because it has given a right. But for that, we have to refer Punjab and Haryana High Court ki judgment. It's an old judgment where it has specifically recognized that if you change the kind of रेमेडी को चेंज करते हो या उसको इम्प्रूव करते हो, उसको हम कहते हैं रेमेडियल स्टैट्यूट्स. राइट? हमने क्या किया? हमने कोई नई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेमेडी थी उसको इम्प्रूव किया. इवन इफ वी आर प्रोवाइडिंग रेमेडी, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी राइट. पार्टी इज ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उसकी इंटेंशन हमेशा क्या होती है? टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. क्या वो स्टार्टिंग से सोचती है कि नहीं ब्रीच हो जाएगी तो मेरे पास तो डिस्क्रिशन है कोर्ट की, होगा एनफोर्स, होगा नहीं होगा ना से? क्या वो रेमेडी को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? द आंसर इज नो. कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं टू एनफोर्स इट, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो उसको एनफोर्स नहीं कर पाते, फिर वो रेमेडियल लॉ में जाते हैं. जस्ट बिकॉज हमने रेमेडी को मैंडेटरी इन नेचर दे दिया, हम ये नहीं कहते कि वहां पे पार्टीज का राइट एक्रू हो गया. नो, we have just improved the remedy. And Punjab and Haryana High Court की judgment है जहां पे उन्होंने कहा if we have improved the remedy then we called it remedial statute, and उसे हम हमेशा क्या देंगे? retrospective effect देंगे. Is that clear? हाँ जी, क्लियर है. उसी में कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर रेमेडी हमने प्रोवाइड की है, चाहे वो मैंडेटरी इन नेचर है, it will not create a vested right of a party. It means वो right की form नहीं लेगा, वो क्या रहेगी? वो remedy ही रहेगी. When it is a remedy, it means the law is procedural in nature and we have to give retrospective effect to it. Is that clear? हाँ जी, clear है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Even after 2018, though there are 2-3 high court cases where they have recognized expressly that the law is retrospective in effect by discussing it, whether the term is substituted or repealed. They have used different kind of interpretation, but they laid down that the 2018 amendment is retrospective in effect, and we have to apply that law even to the pending cases, right? The Supreme Court in 2020 has not laid down any law or has not examined the issue, but 2020 में एक अपील सुनते टाइम जो 2018 से पहले कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उसको डील कर रही थी. 2020 में एक अपील सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट, और वो जो अपील थी, वो जो मैटर था, वो कब अराइज हुआ था? बिफोर 2018. उस केस में कोर्ट ने उस पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया whether we have to apply it retrospectively or prospectively, क्या उस केस में वो अप्लाई होगी कि नहीं. But while dealing with that case, court referred 2018 amendment
and held that after 2018 amendment, section 10 makes the provision mandatory in nature. Is that clear? हाँ जी, clear है? जैसे ये लास्ट लाइन दोबारा बताना। सुप्रीम कोर्ट में केस पर पेंडिंग था, अपील पेंडिंग थी, बी संतोषम्मा वर्सेस डी सरला केस 2020। ये केस में जो था ये 2018 से पहले राइज हो रखा है, मीन कॉज ऑफ एक्शन जो है 2018 से पहले राइज हो रखा है एंड द अपील वाज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने इस केस में ना तो इस इशू को डील किया वेदर द 2018 अमेंडमेंट शुड बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव, या वो उस केस में उसको अप्लाई करेगी या नहीं, बट इन दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड दिस अमेंडमेंट। कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को रेफर किया उस केस में और कहा कि अब सेक्शन 2 आफ्टर 2018 सेक्शन जो 10 है वो क्या कर रहा है, रेमेडी को मैंडेटरी बना रहा है, जो कि पहले डिस्क्रिशनरी थी। वो जो केस था वो स्पेसिफिकली एक्चुअली सेक्शन 12 से डील करता था, सेक्शन 10 से डील नहीं करता था, बट while dealing with that case the Supreme Court also referred 2018 amendment. It means, and there are a number of high courts who are referring 2018 amendment time and again in cases which arose before 2018. Is that clear? Ma'am, but still they have not clarified that we should give it a retrospective or prospective effect. They have, there is one or two high court who has expressly mentioned, but there is no ruling by Supreme Court on this behalf. Okay. मैं आपको अभी लिखवाऊंगी, उस पे केसेस भी लिखवाती हूँ मैं आपको, but the point is the Supreme Court has referred that provision, but they have not expressly laid down whether it should be given retrospective or prospective. But if we check the law, right, if we apply interpretation of statutes की provisions को apply करें, then from that we can say that the SRA Amendment Act 2018 should be given retrospective effect instead of prospective effect, because it is merely providing a remedy. It is not given and it does not give any right to a party. Therefore, if it is procedural in aspect, then it should be given retrospective effect and not prospective effect. Is that clear? हाँ जी, clear है? कोई Yes, doubt? कोई doubt है तो पूछो। हाँ जी, any doubt? इस पे प्लीज लिखिए, फिर थोड़ा सा लिखिए इस पे। Specific Relief Amendment Act 2018 was enacted on 19th of September 2018 and it came into force on 1st of October 2018 and it came into force on 1st of October 2018. फिर नेक्स्ट जो हेडिंग है वो बनाइए, changes brought by 2018 Act. Changes brought by 2018 Act. First, specific performance of contract is no longer an exceptional or discretionary remedy. Specific performance of contract is no longer an exceptional or discretionary remedy. Full stop. Court is bound to order specific performance of contract subject to section 14 11 subsection 2 section 14 and section 16, subject to section 11 subsection 2 section 14 and section 16. Second, party is entitled
to get specific substituted performance, is entitled to get substituted performance. Third, no injunction can be ordered. No injunction can be ordered in cases relating to infrastructure projects. Relating to infrastructure projects. Next, special courts are constituted to deal with matters relating to infrastructure projects. To deal with matters relating to infrastructure projects. The act also, next point likhna. The act introduced time-bound disposal of above said cases. Above said means infrastructure projects के regarding जो cases हैं उनको time-bound कर दिया. The act introduced time-bound disposal of above cases. Bracket में कर लो 12 months plus 6 months is equal to 18 months. General rule is 12 months. In exceptional cases, 6 months can be more added, but in total, 18 months should be the final period in which the case should be disposed of. हाँ जी, clear है? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Next, लिखिए object or reason for introducing the amendment. Reasons or object of amendment. Act 2018. First, to make law in consonance with economic development. To make law in consonance with economic development made since enactment of 1963 Act. Made since enactment of 1963 Act. Second, for the purpose of ease of doing business. For ease of doing business. Third, to curb delay in execution of infrastructure projects. Infrastructure projects. Next heading बनाइए. Whether Amendment Act 2018 is prospective or retrospective in effect. Whether Amendment Act 2018 is prospective or retrospective in effect. इस पे लिखिए. The Amendment Act does not specify whether amendment would be applicable prospectively or respectively. Thus, full stop के बाद लिखिए. Thus, it becomes a matter of interpretation whether to construe it as prospective or retrospective in nature. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. The general position of law. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. The general position of law
is that amendments to substantive law apply only prospectively, whereas amendments to procedural law can apply to pending proceedings. Whereas amendment to procedural law can apply to pending proceedings, that is retrospective effect. Full stop. Statutes that provide new remedies for the enforcement of an existing right, are treated as procedural, and apply to future as well as past, causes of action. नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइए. द डिवीजन बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, in Hazara Singh versus custodian of evacuee, evacuee property, AIR 1960, Punjab and Haryana, page number 133, laid down that remedial statutes which are enacted in order to improve and facilitate the remedies already existing for the enforcement of rights are generally given retrospective effect. The court further observed that the right to a particular remedy is not a vested right. Thus, a statute or amendment which furnishes a new remedy without disturbing the vested right, or which prescribes a new procedure
which prescribes a new procedure, comma, applies not only to actions, which have already accrued, सॉरी अखिल क्या आप रिपीट करोगे, मैंने क्या लिखा है? Thus, a statute or amendment which furnish new remedy without disturbing vested right, or which prescribe new procedure apply not on action which इसके आगे प्लीज लिखना है which may be commenced after its enactment, which may be commenced after its enactment, which may be commenced after its enactment, but also to actions which have already accrued or which are pending before court, मैम हाँ जी, which have already accrued or which are already pending before court, which have already accrued or pending before court. मैम हाँ जी, मैम ऐसे 2019 में भी काफी जजमेंट्स हैं जिनमें ओल्ड लॉ ही अप्लाई किया गया है, तो फिर वो क्यों किया गया था? with regard to स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैम। नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या उस प्रोविजन में चेंज आया 2018 अमेंडमेंट में? यस मैम। आप क्या प्लीज मुझे सेक्शन कोड 16 मैम। सेक्शन 16 में क्या चेंज आया बच्चे? आज मेरे पास ना एक्चुअली बेयर एक्ट नहीं है मैम, उसका जो क्लॉज से था उसमें चेंज आया था ना, हु फेल्स टू प्रूव। बच्चे यहाँ पे पहले मेजॉरिटी तो अब बोलो, आप बोलो पहले दीपिंदर। मैम 2018 से पहले था हु फेल्स टू एवर एंड प्रूव, और 2018 के बाद आ गया था हु फेल्स टू प्रूव, तो पुराना लॉ ही अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे एक और जजमेंट आई है जहां पे कोर्ट ने कहा कि चाहे हमने वो क्लॉज रिमूव कर दिया लेकिन इंटरप्रिटेशन सेम ही है उसकी, वो फिर कोर्ट के वहां पे रीजंस देखने पड़ेंगे बच्चे कि कोर्ट ने क्या कोर्ट ने कहा कि हम 2018 अमेंडमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, या कोर्ट ने कहा है जो आप जजमेंट कह रहे हो और जो मैं कह रही हूँ वो दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। बिकॉज इवन आई वाज रीडिंग अ जजमेंट, वहां पे कोर्ट ने कहा कि हम उसको इंटरप्रेट सेम सेंस में करेंगे। वो जब हम सेक्शन 16 करेंगे, हम वो जजमेंट तब रेफर करेंगे इन डिटेल, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या स्पेसिफिकली इसको बार किया है कि हम 2018 अमेंडमेंट को अप्लाई ना करके सिर्फ 2018 से पहले जो लॉ था वही अप्लाई करेंगे जो आप जजमेंट की बात कर रहे हो, या उन्होंने इंटरप्रेट 2018 से पहले जो लॉ था उसके कॉन्सोनेंस इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने अप्लाई किया है। तो दीपिंदर, आप जो जजमेंट कह रहे हो एक बार आप मुझे वो जजमेंट फॉरवर्ड कर देना, फिर आई विल क्रॉस चेक किया आप जो जजमेंट कह रहे हो और जो मेरी जजमेंट वो सेम है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे क्या है, विद रिगार्ड टू रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे कोई हमारे पास एज सच प्रोविजन नहीं है, हमारे पास लॉ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट बिकॉज 1963 एक्ट को भी प्रोसीजरल लॉ था, हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। वी आर जस्ट इम्प्रूविंग द काइंड ऑफ रेमेडी, और ये ऑलरेडी कोर्ट्स कह चुके हैं अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, वी आर नॉट गिविंग राइट, वी आर जस्ट इम्प्रूविंग द प्रोविजन, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको प्रोसीजरल लॉ का ही पार्ट मानेंगे। और अगर हम यहाँ पे विदाउट डिस्कसिंग एनी जजमेंट, अगर आप देखो सेक्शन जो 10 है उसमें क्या कहा है, रूल इज दैट यू हैव टू गिव मैंडेटरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट उसके साथ उसके एक्सेप्शन भी रिकॉग्नाइज किए। इट मीन्स दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, उसके अंदर भी एक्सेप्शन है। तो वो पावर हम ये नहीं कहेंगे एब्सोल्यूटली कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट के पास अभी भी डिस्क्रिशन है, बट द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन हैज बीन रिड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? तो हम उसमें कोई ये नहीं है कि अब कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं,
मेरा तो राइट ही आप मुझे इन्फोर्स करवाओ। नो, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी विद रिगार्ड टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। उसके बाद कोर्ट विल डिटरमिन वेदर टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और नॉट। वी हैव जस्ट रिड्यूस द स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे कोई राइट वेस्ट नहीं हो गया, अभी भी कोर्ट का ही हम कहेंगे कोर्ट की ही डिस्क्रिशनरी पावर है। स्कोप कम हो गया, बट स्टिल अ कोर्ट हैज अ अपर हैंड, राइट? यू कांट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो देयरफॉर अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कोर्ट का कोई राइट, जो पार्टी है उसको कोई राइट क्रिएट भी नहीं हुआ। इन दैट सेंस ऑल्सो this law can't become substantive law. Is that clear? हाँ जी, clear है? Just say yes or no. Dipinder, is it clear? Yes, ma'am. Okay. We were, मैं आपको कौन सा केस लिखवा रही थी? हजारा सिंह वर्सेस कस्टोडियन। Okay. इसके बाद लिखिए आप the question of, next paragraph लिखिए, the question of applicability wait, before that one paragraph should be added. A similar question, जब ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट लिखी है उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, a similar question arose when Act of 1963 came into force. When Act of 1963 came into force, full stop. In Radheshyam Kamila versus Shrimati Kiran Bala Dasi versus Shrimati Kiran Bala Dasi and others, 1971, Calcutta High Court, page number 341. The court observed that it should be given a retrospective effect and applied to pending matters and be applied to pending matters. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the question of applicability of the Amendment Act 2018 has been considered by Calcutta High Court. The question of applicability of 2018 Act to pending matters has been considered by Calcutta High Court in the case of Church of North India versus Ashoke Biswas 2019. Ashoke Biswas 2019, where the court held that it should be applicable to the pending cases and therefore be given retrospective effect, the full stop. The court gave this opinion after noticing the language used under section 14 subsection 1.
कोर्ट कहती है यहाँ पे टर्म यूज हो रखी है फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, ये टर्म अभी यूज हो रखी है सेक्शन 14 में। अखिल सेक्शन 14 रीड करना एक बार। Section 14. Contract not specifically enforced. The following contracts cannot be specifically enforced, namely A. ओके Where- बस 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 बस। कोर्ट कहती है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। इससे पता चलता है कि लेजिस्लेचर, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कि इस लाइन से पता चलता है कि जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की वो पेंडिंग मैटर्स पे भी अप्लाई करने की है, जो न्यू एनफोर्समेंट है। क्योंकि अगर लॉ चाहता कि हम इसको सिर्फ फ्यूचर केसेस पे अप्लाई करें तो इसकी वर्डिंग होनी चाहिए थी नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसकी जो ये लैंग्वेज है ये क्या हो जाती, ऑल्टर हो जाती। कोर्ट कहती लेकिन इसकी लैंग्वेज ऑल्टर नहीं की गई। इससे पता चलता है कि जो लेजिस्लेचर है वो इसको क्या देना चाहता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी क्लियर है। Yes, ma'am. The similar view रहने दीजिए, इस पे लिखिए The Allahabad High Court in the case of Mukesh Singh versus Saurabh Chaudhary, in the case of Mukesh Singh versus Saurabh Chaudhary 2019 also upheld the view of retrospective operation. फर्दर लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइए। इन द केस ऑफ बी संतोषम्मा, in the case of B Santoshamma versus the D Sarala, S-A-R-A-L-A, D Sarala 2020 volume 4 RCR 7 आप बताओगे अखिल मैंने क्या रिपीट किया, सेंटेंस रिपीट करना। In V. Santosh Sharma versus D. Sarla, 2020. Okay. The apex court, while dealing with the appeal, in a matter which arose before October 2018, has referred 2018 amendment, without making any observation with regard to it, regarding its effect, or operation, full stop। अब इसको कंक्लूड करिए आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं खुद से। टू 2018 एक्ट ने क्या किया, मियर रेमेडी को इम्प्रूव किए, वहां पे कोई वेस्टेड राइट नहीं है, बिकॉज इवन आफ्टर 2018 अमेंडमेंट जो मेन इशू अराइज होता है दैट इज विद रिगार्ड टू एनफोर्समेंट, क्या उससे कोई राइट मिल गया, द आंसर इज नो, ओनली द काइंड ऑफ रेमेडी व्हिच वाज अवेलेबल टू अ पार्टी इज इम्प्रूव्ड। therefore it can be said that the nature of law has not been changed by 2018 amendment. It remains a procedural law, and the general rule is that amendment to a procedural law is always given a retrospective effect
unless otherwise provided. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, any other doubt with regard to chapter 1 of part 2 or with regard to Amendment Act? मैम जब हम बात करते हैं कि सेक्शन 10 में शैल अप्लाई किया है, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन प्रोवाइड की हुई है, इसके अलावा अगर इसमें भी अप्लाई नहीं करते तो उस पर तो कोर्ट को वो राइट अवेल कर सकते हैं, वो कोर्ट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो सकती। ओके, हाँ अगर जी। राइट अवेल कर सकते हैं वो, अगर ऐसे केसेस हैं तो उसे तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव ही कहना ठीक रहेगा। एज इन राइट अवेल कर सकते हैं, एज इन मतलब जैसे आपने कहा था ना कि जो जिस इन न्यू सेक्शंस में फॉल नहीं करते, उसमें भी कोर्ट का मतलब मैंडेटरी नेचर है टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके। फिर कोर्ट को बाउंड कर दिए न्यू एक्ट के कारण, तो फिर मतलब अगर वो बाउंड है राइट देने के लिए कोर्ट, मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो पर्सन है उसका भी एक राइट बन जाता है यहाँ पे लेने का। ओके, जब हम बात कर रहे हैं राइट, अ पर्सन हैज अ राइट टू क्लेम रेमेडी अंडर सेक्शन 10, बट सेक्शन 10 एब्सोल्यूट थोड़ी है अखिल। It is subject to subsection 2, it is subject to section 14 and it is subject to section 16. ये प्रोविजन आप सीआरपीसी में करके आए हो। रिमेम्बर दैट पार्ट जहां पे आई थिंक सेक्शन 437 में सबसेक्शन 6 की बात है कि क्या डिफॉल्ट बेल की सेक्शन 6, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे ये इश्यू राइज हुआ था कि क्या वहां पे डिफॉल्ट बेल मैंडेटरी है या नहीं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ दैट सेक्शन वहां पे, लेकिन इश्यू यही था कि रूल तो मैंडेटरी नेचर है बट उसके साथ एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज कर रखे इन दैट वेरी सेम सेक्शन। तो बात राइज होती है जब मैंडेटरी शेल वर्ड के साथ एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज की हुई है तो वो मैंडेटरी नेचर नहीं रहती उसकी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट, अगर हम कहें एब्सोल्यूटली आप अप्लाई कर सकते हो क्या पार्टी का राइट है? नो। अगर ऑपोजिट पार्टी ने केस को सेक्शन 14, 16 या 11, 2 में फॉल करवा दिया, देन यू डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट राइट। देन इट इज, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि पार्टी को राइट दे दिए, हम कहेंगे जो मतलब इफ वी एनालाइज द अमेंडमेंट एंड सेक्शन 10 बिफोर एंड आफ्टर, आई फील दैट अमेंडमेंट करके हमने जो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है उसको स्कोप बहुत कम करते। पहले बहुत ज्यादा वाइड था, अभी भी डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन क्या है कि अगर केस 14 और 16 में फॉल कर जाता है कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगी, वहां पे कोर्ट बाउंड नहीं है। इट मीन्स डिस्क्रिशन तो अभी भी है, लेकिन जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिशन है वो रिड्यूस हो गए। अगर हो जाता कि सेक्शन 11 को हम एब्सोल्यूट कर देते, सेक्शन 14, 16 और 11 2 की प्रोविजन ऐड ना करते, उसको सब्जेक्ट टू ना करते, वहां पे पार्टी का राइट एराइज हो जाता, दैट इट इज क्लियर कट कि आप क्लेम कर ही सकते हो। बट अगर रूल में एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस हो गया देन यू डोंट हैव अ राइट, बिकॉज देयर कैन बी अ केसेस जब आपका केस जो है एक्सेप्शन में फॉल कर जाए। इज दैट क्लियर? मैम जैसे अगर हम सेक्शन 10 को पढ़ें, वहां पे लिखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। मैम इसका मतलब क्या होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन? सब्जेक्ट टू मींस जो सेक्शंस मेंशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू मींस आप इस प्रोविजन को अप्लाई करते टाइम उन सेक्शंस को ध्यान में रखोगे, you are bound by those sections. It means section 10 की अपनी existence ऐसा नहीं है, independent existence नहीं है, it is dependent for to interpret section 10 you have to refer section जो भी subject to किया है उसको, उनको ध्यान में रखते हुए आप section 10 अप्लाई करोगे, आप independently उसके अप्लाई नहीं कर सकते। ओके मैम, अब ठीक है। ठीक है, ओके। any other doubt? प्लीज नोट डाउन 2-3 केसेस जो आप अटेम्प्ट करके लेके आओगे और फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन, इट इज विद रिगार्ड टू चैप्टर 1। हाँ जी, प्लीज नोट डाउन। A agreed to sell a piece of land to B. A agreed to sell a piece of land to B
सॉरी ये नहीं है, ये पुराना, सॉरी प्लीज ये मत लिखिए प्लीज। हाँ जी, इस पे लिखिए। X was in possession. X was in possession of a house. X was in a possession of a house belonging to Y. Belonging to Y. Full stop. Y dispossessed X from the house. Y dispossessed X from the house. Full stop. X filed suit. X filed suit for possession under SRA. Filed suit for possession under SRA, claiming that he was a tenant in the house. He was a tenant in the house. Full stop. Y pleads that X was merely a licensee. X was merely a licensee under a license deed. Full stop. Y further contends that he had a right to revoke the license at any time. He had a right to revoke the license at any time. Full stop. Y claims that he revoked the license. He revoked the license and dispossessed X. Full stop. Decide. नेक्स्ट लिखिए। Can a person recover possession of immovable property? Can a person recover possession of immovable property if he was dispossessed? If he was dispossessed, A, being a tenant holding over, being a tenant holding over after the expiry of the term. After the expiry of the term. Second, he was dispossessed by the government. He was dispossessed by the government. Third, he was dispossessed only partially. He was dispossessed only partially. Next. हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। A has taken abode in a vacant house. A has taken abode in a vacant house in which he has no title. In which he has no title. Full stop. B forcibly dispossessed him. B forcibly dispossessed him. Full stop. Can A sue B for trespass? Can A sue B for trespass?
हाँ जी, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके लेके आइएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू।